Hello student, this is our class of competitive section, and in this class we will be taking multiple choice questions which are asked from the various competitive exams. Okay, so there are number of MCQs, but I will be taking some selected MCQs. Those MCQs which I will skip, you can try for them, and if you have a doubt in understanding them, solution is given in this sheet. But still, if you have a doubt in understanding them, you can WhatsApp me the question number belonging to which topic, and in the next video I will cover those MCQs in which you will have a doubt. At present I am taking the MCQs of my choice. Okay? So from various topic we will be taking some selected MCQs. So from the topic of unit, okay, chapter is chapter number 2, units and measurement. The topic is unit. So, okay, before I take the MCQs of this particular chapter, I want to tell you one thing. Student, this is the topic of units. In this chapter, there are MCQs which are mostly based on the unit and the dimension formulas. Now, unit comes in the different chapters of class 11 as well as of class 12, right? So here you will find many questions which are from the different chapters of class 11 which we have not studied, right? And there are MCQs from class 12 also. So if you don't know about the concept of class 11, means some concept which we have not studied, and the concept of class 12 which we have not studied, then it is difficult for you to understand those MCQs. So this type of MCQs which are based on the chapter of class 11 which we have not studied so far, and obviously the MCQs based on the concept of class 12. So this type of MCQs I will skip for the time being. In the future we will cover that MCQ also. I will solve the doubts related to that chapters also, right? So there are number of MCQs from the different chapter of class 11 and from the class 12 also. In the further chapters, chapter number 3, 4 and so on, this type of MCQs will be very less. Specifically in this particular chapter, there are such MCQs which we cannot solve at this moment, because the concept involved in that MCQ we have not understood. That is the reason. Okay, so let us begin with the MCQ number 15. S is equal to A plus BT plus CT square. S is measured in meter. S मीटर में मेजर है. T is in second. T सेकंड में है. तो क्वेश्चन है यूनिट ऑफ C. ओके, नाउ सी हियर, वी हैव गिवन वन इक्वेशन S इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर. वी हैव गिवन द इंफॉर्मेशन कि S इज मेजर्ड इन मीटर. इससे क्या पता चलता है कि ये जो S है वो डिस्टेंस है. कैसे वो डिस्टेंस है? क्योंकि उसका यूनिट मीटर है. मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का ही होता है ना. ओके, T इज इन सेकंड, राइट? T सेकंड में है. तो फिर क्वेश्चन है कि C क्या होगा. ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन. C का यूनिट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है. तो स्टूडेंट, व्हेन आई टॉट यू द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, मैंने आपको एक बात बताई थी कि फिजिक्स का कोई भी इक्वेशन है वो इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड होता है.
डायमेंशनली वैलिड होता है, इसका मतलब कि उस इक्वेशन में जितनी भी क्वांटिटीज आती है वो सबके डायमेंशन फार्मूला सेम होते हैं, या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनके यूनिट सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये जो s है वो डिस्टेंस है, तो ये जो CT² है वो भी डिस्टेंस ही होना चाहिए, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि df ऑफ s इज इक्वल टू df ऑफ CT²। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। उसमें क्या समझाया था कि कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसमें सभी टर्म्स के यूनिट और डायमेंशन सेम होते हैं, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ही है। तो s डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1। c हमें नहीं पता क्या है, तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ c। t² इज द टाइम, t इज द टाइम, तो t² क्या होगा, t2 होगा। सो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू L1, ये t2 उसके डिनोमिनेटर में जाएगा, सो इट इज L1 t-2। ओके, अब अगर आप ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन से हमको क्या समझ में आता है कि ये जो L1 t-2 है दैट इज नथिंग बट द मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि L1 मतलब लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, t मतलब टाइम, उसका यूनिट सेकंड, सो इट इज सेकंड रेज टू -2। क्लियर। तो ये एक सिंपल टाइप का MCQ था। देन आई एम टेकिंग MCQ नंबर 18। अ क्यूब हैज न्यूमेरिकली इक्वल वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया, द वॉल्यूम ऑफ सच क्यूब। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, एक क्यूब है और वो क्यूब का जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू और वो क्यूब का जो सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू सेम है, तो फिर उसका वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सी मैं ऐसे डिटेल में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अगर मुझे सिर्फ मेरे लिए करना है या तो फिर आप अपने लिए सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम मतलब V, सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया मतलब क्या डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं, ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है L3 बराबर, क्यूब हैज लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम, सो L3। और सरफेस एरिया, अब जो क्यूब होता है, यू कैन सी एनी क्यूब, अगर आपके घर में कोई क्यूब है, वो जो रूबिक क्यूब आता है, ठीक है, जिसमें स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं, उनको एडजस्ट करना होता है, तो अगर आप वो क्यूब देखोगे तो उसमें टोटल 6 साइड्स होती है बराबर, ऊपर नीचे आगे पीछे और लेफ्ट राइट, टोटल 6 साइड्स आर देयर। एरिया ऑफ ईच साइड इज L², so 6 sides are there, so it will be 6L²। is that clear? L² will be cancelled from both the side, so therefore L is equal to 6। अब यहाँ पर हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए हम लिख देंगे 6 यूनिट, मतलब इट में भी सेंटीमीटर, इट में भी यूनिट, वी डोंट नो, इसके लिए हम लिख देंगे L इज इक्वल टू 6 यूनिट। अब उन्होंने पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू L³ बराबर, और L की वैल्यू है 6, तो 6 क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी बराबर, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, 216, तो 216 यूनिट बराबर। यहाँ पर आंसर है यूनिट्स 216 यूनिट, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 18 नंबर होगा। ओके, आफ्टर दिस एक 35 नंबर का MCQ है। बीच में बहुत सारे MCQs ऐसे हैं जो कि क्लास 11 के आगे के चैप्टर नंबर 10, 11 जो हमने पढ़े ही नहीं है उनसे लिंक करते हैं, तो वो नहीं समझा सकता, मैंने पहले ही आपको समझाई ये बात। और कुछ MCQ तो क्लास 12 से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड,
मैग्नेटिज्म रिलेटेड, तो वो भी समझाना पॉसिबल नहीं है, बट जब आप वो कंसेप्ट स्टडी करोगे तो आपको ये MCQ आ ही जाएंगे, ठीक है। नाउ MCQ 35, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड ऑन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, राइट। हमको वेलोसिटी का एक इक्वेशन दिया है, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड, तो यूनिट ऑफ ए क्या होगा। देखो ये बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी जो है उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो फिर ये ए का यूनिट क्या होगा, बराबर। अब देखो कोई भी इक्वेशन, फिजिक्स का इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड होता है, इसका मतलब उसके हर टर्म के डायमेंशन सेम होते हैं, हर टर्म के यूनिट सेम होते हैं। तो क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ v इज इक्वल टू यूनिट ऑफ a। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि df ऑफ v इज इक्वल टू df ऑफ a, मीनिंग इज सेम, ठीक है। तो a का यूनिट क्या होगा, इट विल बी मीटर पर सेकंड ऑल्सो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि सर a फॉर एक्सीलरेशन, तो क्या यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, बराबर, आपको कंफ्यूज करने के लिए है, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आई एम टेकिंग MCQ नंबर 76। व्हाट इज दैट, ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। द इक्वेशन, हमको एक इक्वेशन दिया है P प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी। द इक्वेशन, ओके, उन लोगों ने यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर इक्वल टू करके कांस्टेंट आना चाहिए, आई थिंक वो मिसिंग है यहाँ पर ऐसा ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने इस टाइप का किसी और बुक में भी दिया है, देखा है। द यूनिट ऑफ ए का यूनिट पूछा है, ठीक है, ओके। P प्लस a बाई वी स्क्वायर v माइनस बी कॉन्स्टेंट, द यूनिट ऑफ a। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर अभी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आई एम टेलिंग यू रिमेंबर फॉर द फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं तो कोई न्यूमेरिकल में इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी हुई होती है, फिर भी हमको प्रैक्टिस के वजह से पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो हमको एक इक्वेशन दिया है P प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और हमको पूछा है कि ये जो a है उस a का यूनिट क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर नॉलेज के बेस पर, इट इज नॉट गिवन बट आई कैन टेल यू कि ये जो P है, दैट P इज द प्रेशर, इट इज प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो वी हैव स्टडीड दैट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब m1 L1 T माइनस 2 डिवाइड बाय एरिया का L2, सो इट विल बी m1 L माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो डायमेंशन फार्मूला ओरली निकल जाते हैं मुंह में से अपने आप, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, फ्यू सेकंड्स, बट आ जाते हैं, पर कभी कभी गलती भी हो जाती है, ठीक है, ओके। मुझसे भी कभी गलती हो जाती है थोड़ा जल्दी में, ओके। V इज फॉर द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्यूब है। अब वॉल्यूम का क्या होता है, L क्यूब होता है, और उस वॉल्यूम का होता है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, हाँ, वॉल्यूम का होता है L क्यूब और उसका स्क्वायर है, मतलब इट इज L6। ऐसा हमने वॉल्यूम का L क्यूब और उसका स्क्वायर, तो इट इज L6, ओके। पूछा है किसका DF, पूछा है DF A का। अब यहाँ पर देखो P प्लस a बाई वी स्क्वायर है, P और a बाई वी स्क्वायर में, P और a बाई वी स्क्वायर के बीच में प्लस साइन है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या कहता है कि इन दोनों के DF सेम होंगे। आप उसको इक्वेशन को ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओपन करोगे तो भी फाइनली यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो यहाँ पर
डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाय वी स्क्वायर। तो हमको A का फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ P, डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। अब P मतलब प्रेशर, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। तो इट इज m1 L-1 T-2, वी स्क्वायर का है L6, सो दिस इज m1 L5 T-2 बराबर। आई विल हैव टू चेक दिस बिकॉज आई डोंट नो। 76, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। स्टूडेंट, आई हैड नो लुक एट द ऑप्शंस कि ऑप्शन है क्या, बराबर। ऑप्शन को मैंने बिल्कुल इग्नोर किया कि ऑप्शन एग्जैक्टली है क्या। तो इसके लिए चलो कोई बात नहीं, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। ए का अगर डीएफ पूछा है तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पर यूनिट के टर्म में है। तो जो यूनिट्स है ना वो किस टाइप के हैं, डाइन सेंटीमीटर के कॉम्बिनेशन में है। यूनिट किस टाइप के हैं, डाइन सेंटीमीटर के कॉम्बिनेशन में। तो चलो इस तरह से भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मैंने वैसे क्वेश्चन के डिमांड से बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, बराबर। तो फिर भी हमको एक प्रैक्टिस मिली कि मान लो कि अगर ऐसा पूछा होता कि व्हाट इज द डीएफ ऑफ ए, तो फिर डीएफ ऑफ ए इज दिस एंड दिस इज करेक्ट, m1 L5 T-2। बट हियर दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए, और जो यूनिट है वो डाइन इज अ यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, फोर्स, और सेंटीमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो उसके फॉर्म में है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डाइन किसका होता है, डाइन होता है फोर्स का CGS यूनिट डाइन होता है, MKS यूनिट उसका न्यूटन होता है। तो ये क्या होता है, फोर्स मतलब फोर्स का DF क्या होता है, m1 L1 T-2, मास इंटू एक्सेलरेशन, बराबर। अभी यहाँ पर L1 आया है, समझो बात को, यहाँ पर L1 आया है, यहाँ पर m1 है, यहाँ पर भी m1 है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। यहाँ पर T-2 है, यहाँ पर भी T-2 है, चलो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर लेंथ के पावर में फर्क है, ये L1 है और ये L5 है, मतलब इसमें 4 पावर ज़्यादा है, बराबर, 4 पावर ज़्यादा है। तो मुझे जैसे समझ में आ रहा है, फोर्स का यूनिट होता है डाइन, फोर्स का यूनिट होता है डाइन, और डाइन मतलब m1 L1 T-2। अब इसको L की 4 पावर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब आप उसको L की 4 पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब L मतलब क्या, L मतलब लेंथ मतलब सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर की 4 पावर। तो क्या सेंटीमीटर की 4 पावर ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पर, यस है स्टूडेंट। ऑप्शन बी आप देख लो, तो इट इज सेंटीमीटर रेज़ टू 4। आया समझ में। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करके ही आती है। और मेरा जो MCQ स्किप करने के पीछे एक और रीज़न है। एक तो ये है कि लिमिटेड टाइम में जितने हो सकते हैं उतने ही MCQ करवा सकता हूँ। दूसरा कि आपको अपने आप को, आपके ब्रेन को डेवलप करना है कि जिससे आप MCQ खुद सॉल्व कर सको, ऐसी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव गिवन द क्वेश्चंस एंड यू हैव ऑल्सो गिवन द सॉल्यूशन सेपरेटली। तो अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा MCQs करवा दूंगा, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, टाइम लिमिट है, दूसरा भी कोर्स है, ठीक है, बट मैं आपको करवाऊँ जितने मैं करवा सकता हूँ उतने डेफिनेटली मैं आपको करवाऊँगा। पर अगर आप खुद कोशिश करोगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब आपका खुद का दिमाग उसमें इन्वॉल्व होगा, आप खुद सोचोगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ये MCQ मैंने खुद सॉल्व कर दिया, आपने इसको देखा, आपको पता चल गया कि हाँ सर ने ऐसे किया। पर अगर मैं इस MCQ को आपको खुद को सॉल्व करने देता तो आप तुरंत तो सॉल्व कर नहीं पाते, आप थोड़ा सा टाइम लेते, आप अलग अलग तरह से ट्राई करते, और फिर शायद आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते। आप नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पीछे सॉल्यूशन देख लो कैसे उसको सॉल्व किया है एंड देन यू ट्राई। बट अगर आप कर पाते तो उससे
आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आपका जो एप्लीकेशन लेवल है, आपकी जो स्किल है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो डेफिनेटली एनहेंस होगी, वो बढ़ेगी। तो उसलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, तो ये कुछ मैंने DF रिलेटेड MCQs सॉल्व किए हैं, यूनिट रिलेटेड। नाउ लेट अस टेक द MCQ फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डायमेंशन। सो डायमेंशन फार्मूला रिलेटेड बहुत सारे MCQs ऐसे हैं जो कि डिफरेंट चैप्टर्स वाले हैं, ठीक है। इसमें देखो एक MCQ है ना, 25 नंबर का MCQ है, जो कि मैंने वो P+A/V² वाला करवाया था ना, उससे रिलेटेड है, मतलब डायमेंशन फार्मूला रिलेटेड है। तो ये आप डेफिनेटली खुद ट्राई करना, ठीक है। अभी मैं ले रहा हूँ MCQ नंबर 30। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन F of a mass m suspended from a spring of spring constant k, mass m ये फ्रीक्वेंसी है, m is a mass, k is फोर्स कांस्टेंट। एक्चुअली उन्होंने लिखा है स्प्रिंग कांस्टेंट, बट फोर्स कांस्टेंट एंड स्प्रिंग कांस्टेंट आर सेम। ये जो फोर्स कांस्टेंट का जो कंसेप्ट है वो आता है चैप्टर नंबर 6 में, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट सेम, इज गिवन बाय द रिलेशन ऑफ द टाइप F इज इक्वल टू C, कैपिटल C, m रेज टू x k रेज टू y, वेर C इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। C क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब C के डायमेंशन नहीं है, C के डायमेंशन है m0, l0, t0, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, चलो देखो इधर, ये एक अच्छा MCQ है। एक स्प्रिंग है, समझाने के लिए फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के एंड पर एक मास है, ठीक है। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, अभी फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? तो फोर्स कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय k, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो दिस इज फोर्स, मतलब एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स होता है, बट रिस्टोरिंग फोर्स ही हुआ ना, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो एक्सटेंशन मतलब क्या? एक्सटेंशन मतलब के डिस्टेंस, सो इट इज नथिंग बट द फोर्स पर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो मास है, अगर इस मास को हम पुल करके छोड़ देंगे तो मास विल परफॉर्म द ऑसिलेशन। तो वो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू C m रेज टू x k रेज टू y। क्वेश्चन पूछा है ये x और y की वैल्यू क्या है, इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम है दैट इज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम कोई भी क्वांटिटी का इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है F इज इक्वल टू C m रेज टू x k रेज टू y। सो वी वॉन्ट टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसमें क्या करने का, दोनों साइड के df लिखो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, राइटिंग df बोथ साइड। सो df ऑफ f, C तो डायमेंशन लेस है, उसके कोई भी यूनिट्स, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, मतलब m0, l0, t0 होगा, जिसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज m रेज टू x, तो m रेज टू x है, तो m का df क्या होता है? m का df होता है, ठीक है, इसको पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, m रेज टू x एंड k रेज टू y। तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी m0, l0, t-1। दिस इज मास, मास होता है m रेज टू 1,
उसके साथ x मल्टीप्लाई होगा m रेज टू x, k मतलब फोर्स अपॉन डिस्टेंस। अब इसका df क्या होगा, तो फोर्स का m1 L1 t माइनस टू, डिस्टेंस का L1 मतलब इट इज़ m1 L0 t माइनस टू। ठीक है, मुझे याद था कि इसका m1 L0 t माइनस टू होता है क्योंकि उसका जो यूनिट होता है ना वो kg पर सेकंड स्क्वायर होता है, बट आपको समझाने के लिए मैंने इसके ऊपर से उसका df ऑब्टेन किया। ठीक है, तो ये हुआ m1 L0 t माइनस टू रेज टू y। सो वी कैन राइट m रेज टू, ये 1 के साथ y मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी m रेज टू y, तो वी विल राइट दिस एज m रेज टू x प्लस वाई। l रेज टू लिखना है तो लिखो, सॉरी ये l रेज टू लिखना है मुझे, तो l रेज टू आप लिखो 0 क्योंकि 0 इंटू वाई 0 होता है, और t रेज टू माइनस टू वाई। सो दिस इज m0 L0 t1, राइट। दोनों साइड पर क्या करना है, df को कंपैरिजन करना है, डायमेंशन को कंपेयर करना है। तो किसका df कंपेयर करेंगे, सबसे पहले टाइम का। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर टाइम की पावर 1 है और राइट साइड पर टाइम की पावर -2y है, तो दोनों साइड पर डायमेंशन सेम होता है। डायमेंशन मतलब क्या, पावर, एक्सपोनेंट। सो 1 इज इक्वल टू -2y, सो y इज इक्वल टू -1/2, तो y की वैल्यू हमको मिल गई। अब वैसे ही अगर हम मास के डायमेंशन को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट साइड में मास का डायमेंशन 0 है और राइट साइड में मास का डायमेंशन है x प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू -y हुआ, तो दिस इज 1/2। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा इसका। आई एम नॉट लुकिंग इट, बट मुझे लगता है यही आंसर होगा। ठीक है, सो आपके डायमेंशन फॉर्मूलाज अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आपको हर क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूलाज आने चाहिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद 35 नंबर, वी हैव गिवन वन इक्वेशन ऑफ वेव। अभी वेव आता है चैप्टर नंबर 15 में, बट कर सकते हैं इसको सॉल्व। एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x बाय क्या है, v माइनस के, ऐसा एक इक्वेशन दिया है। आपने ये इक्वेशन देखा भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, देखा नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, उस इक्वेशन में जितनी भी क्वांटिटीज़ आती है वो सभी क्वांटिटीज़ के आपको यूनिट और डीएफ पता होने चाहिए, उतना तो आना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। शायद किसी को ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब ये चैप्टर आएगा उसके बाद तो आएगा नहीं एमसीक्यू। ठीक है, चलो करते हैं। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, तो मैंने आपको एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, उनके यूनिट और डीएफ तो एक्सप्लेन किए ही हुए हैं। तो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल, और एंगल तो डायमेंशन लेस होता है, m0 L0 t0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब t1, तो इसका df हुआ t-1, तो एंगुलर वेलोसिटी का df हुआ t-1, बराबर। उसके बाद है v लीनियर वेलोसिटी, तो वो तो फैमिलियर है, v इज लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, व्हाट इज दैट, L1 t-1। डायमेंशन ऑफ k का डायमेंशन फाइंड करने के लिए बोला है। अब कैसे फाइंड करेंगे k का डायमेंशन, तो ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट में है x बाई वी माइनस के, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, डायमेंशन ऑफ x बाई वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k। ठीक है, किसका df पूछा है, आई फॉरगेट, 35 में k का पूछा है, डायमेंशन ऑफ k पूछा है, बराबर। तो x, अब x क्या है, इज इट डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन,
इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय, हाँ ठीक है, दे हैव नॉट एक्सप्लेन इन द क्वेश्चन बट स्टूडेंट द नॉलेज, ये इक्वेशन जब आप पढ़ोगे तब आपको नॉलेज आएगा कि x क्या होता है, x इज अ डिस्टेंस। तो k इज इक्वल टू x मतलब डिस्टेंस, L1 डिवाइड बाई v मतलब वेलोसिटी, इट इज L1 t माइनस 1, सो इट इज व्हाट, t1। लेट मी सी दिस, क्या कि कोई ऐसा ऑप्शन है 35 में, इट इज यस, वहाँ पर सिर्फ t लिखा है तो दैट इज द आंसर। ठीक है, ये हमने किया। इसके बाद एक 45 नंबर का है, शायद उसमें ज़्यादा जगह चाहिए बट चलो कोई बात नहीं। 45, द पीरियड ऑफ ए बॉडी अंडर द SHM दैट इज दैट इज प्रेजेंटेड बाय T इज इक्वल टू P रेस टू A D रेस टू B and S raised to C. P is pressure, P pressure है, D density है, और S सरफेस टेंशन है। आई डोंट नो कि मैंने आपको सरफेस टेंशन का DF करवाया है कि नहीं, मोस्टली करवाया ही होगा। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में ऑलमोस्ट 27 क्वांटिटीज़ के DF एक्सप्लेन किए थे, तो मेरे ख्याल से सरफेस टेंशन उसमें आ जाता है। और वैसे देखो तो बुक 2 के अंदर जो चैप्टर नंबर 10 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, उसमें वो आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, 45 नंबर, द वैल्यू ऑफ ABC। ठीक है, ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, उसमें T आई थिंक टाइम पीरियड है, हाँ द पीरियड ऑफ बॉडी। ठीक है, तो क्वेश्चन कहा है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी इज T इज इक्वल टू P रेस टू A D रेस टू B S रेस टू C। अब एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे हैव नॉट एक्सप्लेन बट आई टेल यू कि अंडर द वाटर एक बबल फॉर्म होता है एंड दैट बबल इज परफॉर्मिंग द ऑसिलेशन। The time period of the oscillation of that bubble is this T equal to P raised to A D raised to B S raised to C, बराबर। तो क्वेश्चन पूछा है हमको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन में दोनों साइड पर DF को कंपेयर करो, बराबर। तो देखो DF ऑफ T इज इक्वल टू DF ऑफ P रेस्ड टू A DF ऑफ D रेस्ड टू B DF ऑफ S रेस्ड टू C। ठीक है, अब T मतलब क्या, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब टाइम, तो उसका DF होता है M0 L0 T1। P मतलब प्रेशर, प्रेशर का DF क्या होगा, प्रेशर M1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2। कैसे आया, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, ठीक है, मैंने आपको समझाया था, उसके ऊपर से आ जाएगा, रेस टू ए। डी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, मतलब M1 L-3 M1 L-3 रेस टू बी। एस मतलब सरफेस टेंशन, तो शायद सरफेस टेंशन भी मैंने आपको समझाया होगा, बट अगर नहीं समझाया है तो अभी के लिए याद रखो, जब चैप्टर नंबर 10 पढ़ोगे तब डिटेल में समझ में आ जाएगा। सरफेस टेंशन मीन्स फोर्स अपॉन लेंथ, बराबर, फोर्स अपॉन लेंथ, S इक्वल टू F बाई L। तो F होता है M1 L1 T-2 अपॉन लेंथ मतलब L1, तो दिस इज M1 T-2 M1 T-2 रेस टू C, इस तरह से होगा। सो अब जितने भी M वाले हैं सबको हम एक साथ ले लेते हैं। तो देखो M रेस टू A होगा, ये 1 को A से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 इंटू B उसको यहाँ पर ऐड करो, पावर ऐड होती है ना, प्लस C, ये किया हमने। उसी तरह से L रेस टू -A -3B, इसमें तो L आता ही नहीं है, T रेस टू -2A और यहाँ पर -2C। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास
ये एक इक्वेशन आया m raised to 0, l raised to 0 and t 1. ओके, नाउ व्हाट वी डू, वी कंपेयर द पावर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम पावर कंपेयर करते हैं. एक बार मैं पूरा फिर से चेक कर लेता हूँ. t इज़ द टाइम पीरियड, लेट मी सी कि क्वांटिटीज़ तो मैंने सेम लिखी है ना, 45 पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो t टाइम पीरियड है, p प्रेशर है, d डेंसिटी है, s इज़ द सरफेस टेंशन. ओके चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो दोनों साइड पर पावर कंपेयर करो, तो a प्लस बी प्लस सी दैट इज 0, ये एक इक्वेशन हो गया. बराबर, मास की पावर को कंपेयर करके एक इक्वेशन मिला. अब लेंथ की पावर को कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट साइड पर लेंथ की पावर 0 है, राइट साइड पर -a -3b है, तो वी हैव अ इक्वेशन -a -3b, बराबर, -a -3b इज इक्वल टू 0. तो ये एक इक्वेशन हुआ. और वहाँ पर -2a -2c इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये एक और इक्वेशन हुआ. समझ में आया? अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट काम वो है इक्वेशंस को सॉल्व करना. अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो फिर इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. बराबर, तो JEE नीट के अंदर चैप्टर 2 में से अगर क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के DF रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको खुद सोचना है. ठीक है, इसमें आप अपना खुद का ब्रेन अप्लाई करो कि इसमें करना क्या है. अब मुझे जो समझ में आता है, ये जो इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में यूज़ कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर है -2a -2c इक्वल टू 1, -2a -2c इक्वल टू 1, ये लिखा. इसमें से -2 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 1. बराबर, तो फिर a प्लस सी क्या होगा, a प्लस सी होगा -1/2. लेट अस डिनोट दिस एज इक्वेशन नंबर 4. ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ये a प्लस सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो. सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन 1, तो इक्वेशन 1 है b प्लस a प्लस सी, मतलब a प्लस b प्लस सी है इक्वल टू 0. तो ये जो a प्लस सी है, दिस a प्लस सी इज -1/2, सो दिस इज b -1/2 इज इक्वल टू 0. सो b इज इक्वल टू 1/2. तो ये हमको b की वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू हमको मिल गई. अब एक वैल्यू मिली है तो धीरे धीरे बाकी भी वैल्यू मिलेगी. आप देखो इक्वेशन नंबर 2, उसमें a और b है, उसमें 2 ही अननोन है, तो 2 अननोन है, उसमें b की वैल्यू रख दो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 -a -3 और b की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू 0. सो ये क्या हुआ, -a इज इक्वल टू -3/2, राइट साइड पर जाएगा, हो जाएगा 3/2. सो दिस इज a इक्वल टू -3/2. तो a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू -3/2 आ गया, a मिल गया, b मिल गया. अब बचा c, तो c के लिए आप 1 और 3 दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हो. मैं यूज करता हूं सिंपल दिखने वाला इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो यहां पर जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उसमें से हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको c की वैल्यू चाहिए. तो c इज इक्वल टू -a -b. अगर आप यहाँ पर c को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओगे तो c इज -a -b. तो दिस इज a कितना है, a ऑलरेडी -3/2 है, तो दिस इज -3/2. और b कितना है, b है 1/2. सो दिस इज 3/2 -1/2.
तो 3 - 1 2 और 2/2 1, तो C की वैल्यू 1 होनी चाहिए. सो इज देयर सच ऑप्शन A इक्वल टू -3/2, B इक्वल टू 1/2 एंड C इक्वल टू 1. तो ऑप्शन A इस टाइप का ऑप्शन है. तो दैट इज द आंसर. समझ में आया? ओके. अब इसके बाद मैं एक और MCQ आपको करवाता हूँ जो कि इसी टाइप का है. ठीक है, विच वन इट इज़? ये था 47. ये कौन सा था? 45 था. हाँ चलो, अब मैं करवाता हूँ 47 नंबर का MCQ. Okay, so let us take MCQ number 47. The velocity of a, वो भी इसी टाइप का है, इक्वेशन सॉल्व करने वाला, सेम मेथड बट डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन. द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंजेस एज g⁻p h⁻q. ठीक है, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट. द वैल्यू ऑफ p एंड q. अब देखो क्वेश्चन में कहा है द वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंजेस एज पर, मतलब वेलोसिटी चेंजेस, मतलब वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन g⁻p h⁻q. वेलोसिटी वेरीज एज पर दिस, मतलब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू दिस. आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा. देखो अभी तक आपको नहीं पता था, नो प्रॉब्लम. आपको बताया ना कि अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये होता है. नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट हैव सच प्रॉब्लम. ठीक है, तो g क्या है? g इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. यहां लिख देता हूं, g इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और h इज हाइट. h है हाइट, बराबर. तो वैल्यू ऑफ p एंड q वी हैव टू डिटरमाइन. तो सेम वे दोनों साइड पर df कंसीडर करना है. df ऑफ v, df ऑफ g⁻p, df ऑफ h⁻q. तो v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है m0 l1 t-1. g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का क्या होता है? l1 t-2 अगर प्रैक्टिस है, समझ में आता है, कॉन्फिडेंस है कि गलती नहीं होगी, तो पहली बार ही लिख देने का l⁻p t⁻2p. गलती नहीं होनी चाहिए. h मतलब l1⁻q. सो दिस इज l⁻p प्लस q t⁻2p. सो ये है m0 l1 t-1. अब पावर को कंपेयर करो. सबसे पहले टाइम की पावर को कंपेयर करो, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आता है -2p. तो -2p इक्वल टू -1, तो p हुआ 1/2. तो p की वैल्यू हमको मिल गई. फिर l की पावर को कंपेयर करो, p प्लस q इज इक्वल टू 1. सो q इज इक्वल टू 1 माइनस p. 1 माइनस p मतलब 1 माइनस 1/2, दैट इज प्लस 1/2. सो q इज 1/2. सो p और q दोनों की वैल्यू है 1/2. तो क्या ये सही है? तो ऑप्शन बी अगर है तो सही है, बराबर. आई एम नॉट लुकिंग एट द बैक साइड, बट लगता है सही होगा. नाउ नंबर 55. The dimension of a physical quantity x in the equation of force. फोर्स का इक्वेशन दिया है. फोर्स इज इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी. ऐसा एक इक्वेशन दिया है और क्वेश्चन पूछा है डायमेंशन ऑफ x. जो x है उसका डायमेंशन, x का डायमेंशन क्या होगा? बहुत ही सिंपल है.
जिसका डायमेंशन फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दो, बराबर। तो ये x को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाया। फोर्स डेंसिटी, डेंसिटी को कहीं कहीं पर d से डिनोट करते हैं, पर डेंसिटी का जो प्रॉपर सिंबल है वो है रो। इसको कैसे रीड करते हैं? रो नहीं, र के बाद ह बोलने का, रो, RHO, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स मतलब m1 L1 T-2, रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, सो इट इज m1 L-3। तो m1 दो बार है तो m2 हो जाएगा, L रेज टू -2 हो जाएगा, 1 और -3 -2 और T रेज टू -2, तो m2 L-2 T-2। सो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? m2 L-2 T-2, यस, ऑप्शन सी जो है वो इसके जैसा है, ठीक है। नाउ वी टेक MCQ 57, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। मार्टियंस यूज फोर्स, एक्सीलरेशन एंड टाइम एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फोर्स, एक्सीलरेशन शॉर्ट में लिखता हूँ, और टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्चुअली हमको पता है कि टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है SI में, पर फोर्स और एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। बट ये एक न्यू सिस्टम है जिसमें फोर्स एंड एक्सेलरेशन फंडामेंटल है, ठीक है। तो ऐसा कहा है कि मार्टियन सिस्टम में लेंथ का डायमेंशन क्या होगा। तो अब हमको करना क्या है? लेंथ का डायमेंशन फाइंड करना है। लेंथ का डायमेंशन फाइंड करना है मतलब लेंथ का इक्वेशन फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ इन तीन क्वांटिटी के टर्म में, बराबर। और कोई क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए। टाइम लेंथ का इक्वेशन सिर्फ ये तीन क्वांटिटी के टर्म में, बराबर। तो लेंथ मे डिपेंड ऑन फोर्स, मे डिपेंड ऑन ए, मे डिपेंड ऑन टी। किसी के ऊपर डिपेंड कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसको, अगर आप फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन सोचते हो तो आप गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि उसमें मास आ जाएगा और मास फंडामेंटल नहीं है, इसलिए वो नहीं चलेगा। हमें लेंथ का इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इन तीन क्वांटिटी के टर्म में चाहिए, इनके अलावा कोई क्वांटिटी नहीं चलेगी। इनमें से अगर कोई नहीं होगी तो भी चलेगा, बराबर। तो उसका मतलब कि ये लेंथ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, पर इसके अलावा और कोई भी नहीं चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे? देखो, लेंथ का फाइंड करना है तो हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, बराबर ना। एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन हुआ डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर, बराबर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का df मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन 1 टाइम है, इसके लिए a1 आएगा। टाइम 2 बार है, इसके लिए t2 आएगा। तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हुआ a1 t2, a1 t2, हाँ है ऑप्शन डी, ठीक है। अब इसके बाद आई एम टेकिंग, बीच में जो है वो आप ट्राई करना, ठीक है। एंड नाउ आई एम टेकिंग MCQ नंबर 135, ठीक है। 135, what is that? The position of a body with acceleration a is given as x equal to k a raised to m t raised to n, बराबर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ m एंड n। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं। पोजीशन a मतलब एक्सीलरेशन एंड t मतलब टाइम। लेट मी कंफर्म दिस के a एंड t, a एक्सीलरेशन है या नहीं, t तो टाइम ही है शायद।
एक्सीलरेशन, यस, ओके। सो x इज इक्वल टू k a रेस टू m t रेस टू n, बराबर। तो दोनों साइड पर df कंपेयर करना है, df ऑफ x df ऑफ a रेस टू m df ऑफ t रेस टू n। ये जो होता है ना k, ये यूजुअली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है विच इज डायमेंशन लेस। तो x का क्या होगा, x मतलब डिस्टेंस मीन्स m0 l1 t0। a फॉर एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का क्या होगा m0 l1 t माइनस टू रेस टू m, टाइम का t1 रेस टू n। तो ये होगा l रेस टू m t रेस टू माइनस टू m प्लस n, बराबर। तो दोनों साइड पर पावर कंपेयर करो, लेंथ की पावर कंपेयर करो, यहाँ पर लेंथ की पावर 1, यहाँ पर लेंथ की पावर m। तो कंपैरिजन से क्या पता चलता है कि m इज़ 1, मिल गया हमको m की वैल्यू। अगर हम टाइम का डायमेंशन कंपेयर करेंगे तो माइनस टू एम प्लस n इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 2m, सो दिस इज n इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2। सो 135 में m इज़ 1 एंड n इज़ 2, ऑप्शन बी, ठीक है। तो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम टेकिंग ओनली दिस मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एरर से रिलेटेड और कुछ ये असर्शन रीज़न रिलेटेड एमसीक्यूज़ लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके पास है शीट, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।